رحیم یار خان میں فصلوں کی باقیات جلانے والے کسان اور زمینداروں کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اسموگ کے خطرات کے باعث فصلوں کی باقیات جلانے پر کسانوں اور زمینداروں کے جرمانے اور مقدمات کے اندراج ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، رحیم یار خان میں فصلوں کی باقیات کو جلانے والے کسان اور زمینداروں کے خلاف شکنجہ تیار۔ اسموگ کے خطرات کے باعث فصلوں کی باقیات جلانے پر کسانوں اور زمینداروں کے جرمانے اور مقدمات کے اندراج ہوں گے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے عامر بھٹی۔ رحیم یار خان میں فصلوں کی باقیات کو جلانے والے کسانوں اور زمینداروں کے خلاف نہ صرف جرمانے ہوں گے بلکہ ایف آئی آرز بھی ہوں گی۔ پچھلے سال بھی کچھ اسی طرح سے ہی وہ کسان اور زمیندار کے خلاف وہ کارروائیاں عمل میں لائی گئی تھی۔ اویئرنیس کیسے دی جا رہی ہے اور اگر اویئرنیس پہ عمل نہیں کیا جاتا تو کس طرح کی پروسیڈنگز وہ عمل میں لائی جاتی ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو اسموگ کے نقصانات ہیں اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہماری جو خاص طرح اسٹبل برننگ جو فصلوں کی ہو رہی ہے اس سے ایک تو زمین کی صحت متاثر ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ زمین میں جو مفید کیڑے موجود ہیں وہ مطلب ہے کہ اس سے ختم ہو رہے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے کہ اس جو دھواں اٹھنے والا دھواں ہے اس سے جو اسموگ بن رہا ہے اس سے جو ہمارے ٹریفک حادثات بڑھ رہے ہیں، اس سے انسانی جو بیماریاں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ولیج لیول کمیٹیز کے تھرو انفارمیشن فارمر تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس سال بھی ہم نے جو رائس کے ہمارے جنہوں نے لاسٹ ایئر جن کو جرمانے ہوئے تھے ان کو نوٹس ایشو کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام باقی کے کسان دھان کے کاشتکار ہیں ان کو بھی نوٹس ایشو کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ وہ آگ نہ لگائیں۔ بالکل، ہمیں تفصیلاً بتایا گیا کہ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو مانیٹرنگ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں اور ذمہ کو اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے۔ جو اویئرنیس پر عمل نہیں کریں گے فی ایکڑ وہ 15,000 کا فائن کیا جائے گا، اگر وہ فائن نہیں بھریں گے تو پھر ان کے خلاف وہ مقدمات بھی درج ہوں گے۔ بہت شکریہ عامر بھٹی۔ بہاولپور شہر کی فضا آلودہ، سانس لینے میں دشواری سے اسموگ متاثرین سامنے آ گئے۔ پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا شہریوں کی علامات مزید پیچیدہ ہو گئی۔ الرجی اور دمہ کے مریض سانس لینے میں دشواری پر اسپتال منتقل۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے طاہر جودیانہ سے۔ طاہر بتائے گا۔ بہاولپور میں اسموگ سیزن شروع ہو چکا ہے۔ AQI جو ہے وہ اب پچھلے 2 دن سے 200 پوائنٹس جو ہے وہ تجاوز کرتا نظر آ رہا ہے، اور اس حوالے سے بہاول وکٹوریہ اسپتال پلمو وارڈ میں اگر کوئی مریض اس حوالے سے رپورٹ ہوا ہے تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ HOD موجود ہیں ڈاکٹر جوید اقبال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ دیکھیں، جو بات آپ نے کی ہے قابل تعریف ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ رول پلے کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس جو ایئر کی سطح ہے وہ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ سانس کے ساتھ اس کے پارٹیکولیٹ میٹر اندر جانا شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ پارٹیکولیٹ میٹر کوئی قدرتی نہیں ہے، یہ ہمارے دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی گاڑیوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں خام خواہ کی آگ نہیں جلانی کوڑے کو، فصلوں کو، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج کرنا ہے۔ تو ایسا کرنے سے ہی کچھ بہتری آئے گی۔ ہمارے پاس اب ایسے مریض آ رہے ہیں جو آنکھوں کی جلن کا شکار ہیں، جلدی خارش کا شکار ہیں، جن کو پہلے سے الرجی ہے، ان کو سانس کی تکلیف شروع ہو چکی ہیں، جن کو پہلے کبھی TB ہوئی ہے یا سگریٹ پیتے ہیں وہ اس کی شدت کے ساتھ دوبارہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آگے جی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے بعد مزید AQI جو ہے وہ خراب ہوگا، تو اس والے سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ احتیاط بہت ضروری ہے، اور ہمیں کچھ اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی چینج کرنا ہوگا تاکہ مجموعی طور پر اپنا حصہ ڈالیں اور اس پولیوشن کو۔ جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے۔ بہاولپور میں ڈینگی مچھر کے وار جاری ہیں، چھوٹے بچے نشانے پر ہیں۔ سر صادق عباسی اسپتال میں 11 سالہ بچے میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 5 شہریوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، صادق عباسی اسپتال میں 11 سالہ بچے میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 شہریوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، بہاولپور میں ڈینگی مچھر کے وار جاری، چھوٹے بچے نشانے پر۔ سر صادق عباسی اسپتال میں 11 سالہ بچے میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر 5 شہریوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ادویات کی قیمتوں کو ایک بار پھر پڑ لگ گئے۔ احمد پور شرقیہ کے لوگوں کے لیے دوائی خریدنا خواب بن گیا۔ کھانسی، بخار، الرجی، آئی آرنمنٹن کریم اور دیگر ادویات کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، شہری پریشان۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے خادم حسین سے۔ خادم حسین بتائیے گا۔ بالکل، ادویات کی تھوڑے تھوڑے وقفے اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد متواتر بڑھتی قیمتیں لوگوں کے لیے وہ جیب پر بہت بھاری پڑ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی جناب، کیا کیسو؟ صحیح کیسو سر مہنگے ہیں بہت سارے،
तेरी शय गिनते हैं, हर शय को महंगाई है। गरीब आदमी क्या करूं, दवाएं गिनते हैं तो आटा पूरा नहीं सीधा, आटा गिनूंगा घी नहीं पूरा सीधा, मजबूर है जनाब, दवाएं इतने महंगे हैं, हाथ तो ज्यादा। पिछले दवा मैं गिन गया तकरीबन दवाई जरिए घाटे ही होई गिना 20 रुपए ज्यादा पता लाते हैं। हर चीज सर महंगी है, मैं क्या करें, गरीब आदमी क्या मजबूरी है सारी। असा माँ बाप की खिदमत ही करनी सी, दवाएं गिनने से सारी ये मजबूरी है, हर चीज महंगी है सर। एलर्जी की टैबलेट एवल वगैरह हैं, उनमें 400 रुपए की जो एक डब्बी आती थी वो इस वक्त डब्बी जो है 1200 कुछ रुपए की हो चुकी है। यानी मुख्तलिफ अद्वियात में, मुख्तलिफ चीजों में बहुत ज्यादा जो इजाफा है वो देखने के नजर आ रहा है, जिससे अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। अवाम जी शुक्रिया खादिम हुसैन। अपडेट करने के लिए आपको बताएं, मौसम सरमा की आमद के साथ ही लकड़ी की मांग में इजाफा है। लकड़ी की मांग बढ़ते ही लकड़ी की कीमत को भी पर लग गए। लकड़ी की बढ़ती कीमत से शहरी परेशान हैं। खरीदार शहरी कहते हैं पिछले साल लकड़ी का रेट फीमन 800 रुपए था, लेकिन अब कीमत बढ़ाकर फीमन 1200 रुपए कर दी गई है। तफसीलात से आगाह करेंगे आबिद हुसैन भट्ट। सरमा की आमद के साथ ही अहमदपुर लम्मा में लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो चुका है और लकड़ी की कीमतों को पर लग चुके हैं। मेरे साथ एक जो लकड़ी के टाल पर खरीदार शहरी भी मौजूद है। मजीद कीमतों के हवाले से उनसे जानते हैं। जी, एक लकड़ी की बढ़ती कीमतों के हवाले से आपको क्या परेशानी है? पिछले साल जो था वो रेट था 800 रुपये मन, अभी चल रहा है 1200-1300 रुपये। बहुत ही मुश्किल से कितने मन लेके जाते हैं, बहुत ही मुश्किल से, बहुत लकड़ी महंगी मिल रही है। हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके कुछ महंगाई में कमी की जाए। जी, ये थे खरीदार शहरी जो अपनी महंगाई का दास्तान सुना। दूसरी तरफ हम जो लकड़ी के टाल के दुकानदार से जानते हैं कि ये इतनी कीमतें लकड़ी की क्यों बढ़ा दी गई हैं? ये लकड़ी पीछे से हमें बहुत महंगी मिल रही है, जिस वजह से हमें भी रेट बढ़ाना पड़ा है। पिछले साल की निस्बत इस साल तकरीबन 250-300 रुपये लकड़ का रेट ज़्यादा हुआ है और पीछे से लकड़ महंगी मिल रही है, इस वजह से मजबूरन हमें जो रेट बढ़ाना पड़ता है। हाँ जी, जैसा कि आपने लकड़ी के टाल के दुकानदार की भी बात सुनी, उनका कहना है कि पीछे से ही हमें लकड़ी जो महंगी मिलती है, जिसकी वजह से हमें भी आगे। लोधरा शहर के 30 वार्ड में लगे 11 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा। मोहल्ला गुलाबपुरा के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से ताफुनज़दा पानी पर अहले इलाका परेशान। फिल्ट्रेशन प्लांट पर महीनों से जमी काई और गंदगी नुमाया होने लगी। मजीद तफसीलात जानेंगे राना आसिफ से। इस वक्त हम मौजूद हैं लोधरा शहर के वार्ड नंबर 15 में बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जिसे मोहल्ला गुलाबपुरा समेत 5 मोहल्ले जो हैं यहाँ से पानी भरने के लिए, साफ मीठा पानी भरने के लिए लोग यहाँ आते हैं। लेकिन हालात इस वक्त आप देख लें, मेरे सामने ये है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत के गंदगी, गलाजत, मट्टी, गर्द और इससे बढ़कर कहीं ताफुन जो है वो अहलियान मोहल्ला के लिए अजाब का बाइस बना हुआ है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के रिहायशी। बताइएगा। इधर गंदगी है, पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है, स्मेल है पानी में और आने का दिल नहीं करता, पानी भर नहीं सकते। ये जब भी देखो टूटियां नहीं होती, आज टूटियां लगा दी और आगे पीछे सफाई नहीं होती इधर की, बहुत बदबू होती है। हमने तो नहीं देखा कभी भी आगे सफाई करी हो इधर की, और जब भी देखा इधर स्मेल होती है, पानी नहीं भर सकते। पानी नहीं भर सकते, ये यहाँ के मसाइल हैं और यहाँ के शहरी मौजूद हैं। बताइएगा पानी क्या पोजीशन है? सर इधर से पानी लेना ही छोड़ दिया क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बीमार होते हैं, सारा गंद है, गलास, बदबू आती, इधर खड़े होते बदबू आ जाती है। हम लोगों को पानी भरने को क्या दिल करेगा। फिल्टर प्लांट की बात करें, टूटियां बड़ी मुश्किल से लगी हैं, बार बार हमने इनको रिपोर्ट किए, बार बार बोलते हैं, आते ही नहीं है ये लोग। कोई ड्यूटी नहीं है इधर, कोई सफाई नहीं है, बिल्कुल गंद है, हर टाइम बदबू। जब आने को दिल नहीं करेगा, पानी क्या पियेंगे? बिल्कुल, जब आने को दिल नहीं करेगा तो पानी यहाँ से, और वो भी पीने का पानी कैसे भरा जाएगा, ये है यहाँ के लोगों की शिकायत। बुरा हाल है। और ये सिर्फ इसी एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात है, शहर के तमाम वार्ड में लगे फिल्ट्रेशन प्लांट का यही आलम है। और लोगों ने मुतालबा किया कि म्युनिसिपल मुल्तान के शहरी नए टैक्स की अदायगी के लिए हो जाए तैयार। बिजली, गैस, वासा और पानी के बाद अब कचरे का बिल भी अदा करना होगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज से कचरा टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया है। टीमें तश्कील दे दी गई। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। जी बिल्कुल, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुल्तान में भी सैनिटेशन वैन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है और इस मौके के ऊपर वॉक भी की गई है। स्मोक के हवाले से लोगों को आगाही भी दी गई है, पॉम्फलेट्स भी दी गई हैं। अब कूड़े के हवाले से टैक्स जो निज़ाम बनाया गया था उसके तहत टैक्स भी वसूल किया जाएगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल रज़ाक डोगर साहब। सर, क्या डिवीजन में किस तरह से कितनी वैन्स होंगी और तरीकाकार क्या है और कब से जो है टैक्स वसूल करने जा रहे हैं? अच्छा, टैक्स की वसूली का निज़ाम तो हमने पहले से शुरू किया हुआ है, लेकिन अब ये जो वैन है, सैनिटेशन रिकवरी वैन,
اس کے ذریعے ہی ہماری ٹیم جائیں گی، لوگوں کو آگاہی بھی دیں گی، اور ایٹ دا اسپاٹ کسی نے اگر اپنا بل جمع کروانا ہے تو وہ بالکل ایزیلی اس کے اندر جس طرح ایک ون ونڈو والا ہوتا ہے اس کے اندر جیز کیش کی ٹیم بھی ہوگی، اور فیسیلیٹیشن کے لیے ہمارے لوگ موجود ہوں گے جو لوگوں کو آگاہی بھی دیں گے اور بل بھی جمع کریں گے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسموک کی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ AQI جو ہے وہ خطرناک حد تک وہ انکریز کر رہا ہے، تو ہم نے واٹر سپرنکلنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے. شہر کے اندر صفائی کا جو نظام ہے وہ ڈسٹ کو کم سے کم کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا بلنگ کا نظام کیا ہے، کس طرح سے لوگوں کے گھروں پر بل پہنچائے جائیں گے، کیا ہے یہ بتائیے گا، اور کب سے؟ جی بالکل، یہ ہر گھر میں جس طرح ہمارا ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہے تو ہر گھر میں یہ بل آپ کا پہنچے گا، اس کے اوپر ایک ریفرنس نمبر لکھا ہوگا، اور آپ نے جیز کیش کے ذریعے یا اپنی موبائل ایپ کے ذریعے وہاں پہ ریفرنس نمبر ڈال کے اپنا بل جمع کروانا ہے. جی بالکل، جہاں پر گھروں میں جو ہے کوڑے ٹیکس کے حوالے سے بل پہنچیں گے وہیں پر فیسیلیٹیشن وین کا بھی جو ہے افتتاح کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے ملتان کے ڈبل پھاٹک چوک پر ریلوے حدود میں قائم فیملی پارک انتظامیہ کی غفلت کے باعث تباہی کا شکار. پارک میں عوامی سہولیات کا فقدان اور نشے کے عادی افراد کی موجودگی نے شہریوں نے پارک میں آنا چھوڑ دیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شکیل سلطان سے. شکیل سلطان بتائیے گا. جی میں اس وقت ملتان کے ڈبل پھاٹک اور ریلوے کالونی میں بنائے گئے پارک میں موجود ہوں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس پارک کی حالت جہاں شہریوں کو اس طرح کی ملنی چاہیے تھی کہ یہاں تفریح ہونی چاہیے تھی، سکون ہونا چاہیے تھا، سبزہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی جگہ تباہ حالی ہے. میرا کیمرہ مین ارشد گجر اگر آپ کو پارک کے یہ تھوڑے مناظر دکھائے، یہ مکمل طور پر یہاں پہ درخت جل چکے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے لیے بینچز موجود نہیں ہیں، جبکہ رات کے وقت یہاں نشہ کے عادی افراد جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور شہریوں کا گلہ ہے کہ یہاں پہ وہ چوری ڈکیتی بھی کرتی ہیں. جھولے غائب ہو چکے ہیں، جبکہ پینے کا پانی، کینٹین سب کچھ بند ہے. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ابھی آپ پارک میں میرا خیال ہے آئے تھے تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے، کیسی حالت پائی پارک کی، اب کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک ناصر محمود کمور نام ہے جی، میرا پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے. پارک سے چند قدم کے فاصلے پر میرا گھر ہے، یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، ساتھ ہی ہوٹل ہے، دوستوں کے ساتھ چائے بھی پینی پڑتی ہے، پارک میں بھی آنا پڑتا ہے. تو پارک کا جو مسئلہ ہے یہ عرصہ دراز سے خراب ہے. علاقے کے لوگوں نے مجھے پہلے بھی کہا تھا، پھر میں نے DG MDA کو PHA کو بھی کہا تھا، انہوں نے بھی ملازم بھیجے تھے، پر یہاں کے انتظامیہ اگر یہ کہے انہیں PHA کو تو وہ کہتے ہیں ریلوے والوں کا کام ہے، ریلوے والوں کو کہیں تو وہ کہتے ہیں ان کا DC کا کام ہے. ہاں جو عوام ہے انہوں نے عورتوں نے بھی آنا ہے، بچوں نے بھی آنا ہے، مردوں نے بھی آنا ہے. یہاں نشائیوں نے ڈیرا لگا رکھا ہے ان کی سہولت کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے. کچھ بھی یہاں کوئی انتظامات نہیں ہے، کوئی بینچ نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی وہ کلٹین نہیں ہے، کوئی رسپانس، کوئی پروٹوکول عوام کو ادھر نہیں ہے. نشائیوں نے یہاں اپنا ڈیرا بنا رکھا ہے، ساتھ ہی اسٹیشن ہے. اسٹیشن سے گزر کے جب یہاں کراس کر کے ہر کوئی اپنے گھر جاتا ہے رات کے ٹائم، تو یہاں چوروں نے، ڈاکوؤں نے یہاں لگایا ہوتا ناکہ. ٹھیک ہے، یہاں کے رہائشی بھی ہیں اور اپنی طرف سے اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ افسران کو شکایت بھی کر چکے، لیکن پارک کی حالت ویسی ہی موجود ہے. انکل جی آپ بھی یہیں کی رہائشی ہیں؟ جی جی بالکل، میرا نام پارک کی یہ حالت کب سے ایسی ہے؟ یہ تو کافی عرصہ ہو گیا ہے جی، بس بنا تو دیا گیا ہے عوام کے لیے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. یا جتنے ہیرونی، ایسر، نشائی جو کچھ بھی ہے، نہ کوئی فیملی بیٹھ سکتی ہے. دیکھا ہے جگہ جگہ پہ جی سر پیشاب ہوا پڑا ہے، گندگی ہے، نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اکثر لوگ اگر یہاں سے کوئی 10 بجے کے بعد 9 بجے کے بعد گزرے تو اس کو لوٹ بھی لیتے ہیں. پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں کون نہیں ہوتے. یہاں کے مکین بھی ایسے ہیں اور حال بھی بھیڑا ہے. ہر کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے. اگر کوئی رات کو تھکا ہارا آ کے 2 منٹ کے لیے چائے پینے آ جائے یا کچھ کرنے آ جائے تو وہ جیبیں بھی خالی کرائے، موبائل بھی چھنوائے. اور یہاں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے. یہ تفریح گاہ جرائم کی گندگی کا گڑھ بن چکی ہے. عوام کے لیے اب تفریح بھی خطرناک بن چکی ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 منٹ کے لیے بیٹھ بھی نہیں سکتے، کوئی پتہ نہیں کون آ کے لوٹ لے. یہ گنجان آباد علاقہ ہے. ڈبل پھاٹک کے ارد گرد بھی بہت آبادی ہے، ریلوے کالونی بھی ہے، بہت زیادہ آبادی ہے. ایک ہی واحد پارک تھا، اس کی بھی یہ حالت ہے. انتظامیہ کو کیا مطالبہ کریں گے؟ جی ہمارا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس پارک کو جتنا جلدی ہو سکے اسے اپ گریڈ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر بہت فیملیز علاقے ہیں. جب یہ شروع میں بنا تھا تو تقریباً صبح مارننگ کے ٹائم یہاں پر بہت سی فیملیز واک کرنے کے لیے. ہمیں ہاں یہ بھی بتائیں کہ جب یہ پارک بنا تھا تب اس میں سہولیات کیا تھیں، اس کی کیا حالت تھی؟ اب تو دیکھنے بھی قابل نہیں ہے. جب بنایا تھا تب کتنا اچھا تھا یہ؟ جب یہ پارک بنا تھا 2018 میں تقریباً، تو اس وقت اس کی حالت بہت اس طریقے کی اچھی تھی کہ ملتان میں اس سے زیادہ خوبصورت پارک کوئی تھا بھی نہیں. یہ پارک جب بنا تھا بہت اچھا تھا.
यहाँ पे घने और कदो कामत दरख्त भी हैं, एक अच्छा मंजर पेश करते हैं, यहाँ पे हमें छाँव भी है, लेकिन इंतजामिया की गफलत के बायस यहाँ गंदगी जमा है और यहाँ जराइम हो रहे हैं। शहरी परेशान हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ की आबादी के लिए वाहिद ये तफरीही पार्क था, इसको बहाल किया जाए, सिक्योरिटी के इक़दाम किए जाएँ ताकि यहाँ के लोगों को भी ये पार्क सहूलियत दे सके। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं रहीम यार खान ज़िले इंतजामिया PRA रजिस्ट्रेशन के लिए मुतहरिक है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इरफान अनवर की हदायत पर सर्विस देने वाले अदारों को PRA टैक्स नेट में लाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। मैरिजेस हॉल समेत तमाम सर्विसेज फराहम करने वाले अदारे टैक्स नेट में ला रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। हम तेज़ी से करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। जितने भी जिसमें टाउन प्लानर्स, शादी हाल्स और दूसरे भी डिपार्टमेंट हैं जिन पर PRA नाफज किया गया, उनको रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ADC जी इरफान अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, कैसे इनको रजिस्ट्रेशन की जाएगी? क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, टाउन प्लानर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैरिज हॉल ऐसे हैं जो PRA नहीं देते, तो कैसे किया जाएगा इसको? इसमें इंशाल्लाह हम हुकूमत की पॉलिसी या हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जो कोअर्सिव पावर्स हमें दी जाएंगी, सबसे पहले तो हम कैंपेन शुरू करेंगे, हम इनको नोटिस जारी करेंगे, हम इनको बावर कराएंगे कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है बतौर पाकिस्तानी होने के, बतौर मुहब्बे वतन शहरी होने के, कि आप अपने बिजनेसेस को रजिस्टर करवाएं। या बिजनेसेस कौन कौन से हैं? बिल्डर्स, डेवलपर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, आर्किटेक्ट्स, इसके अलावा बार्बर्स, मैरिज हॉल्स ऑनर्स और जितने भी दीगर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या कोई एजेंसीज़ हैं या कॉरपोरेशंस हैं या बिजनेसेस हैं, उन सब के लिए ये लाजमी है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। तो पहले मरहले में किन को किया जा रहा है? पहले मरहले में इंशाल्लाह हम बिला तफरीक सभी को हम नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी होने के बाद फिर इंशाल्लाह अगर वो ऐसा नहीं हो पाता तो फिर हम कोर्सिव मेजर्स इंक्लूडिंग सीलिंग ऑफ बिजनेसेस करेंगे इंशाल्लाह। खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फैजाबाद के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इमदादी कैंप कायम। मुख्तलिफ मवाज़ियात से ताल्लुक़ रखने वाले 500 सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम की जा रही है। सैलाबी रैलों ने 30 मवाज़ियात को मुतासिर किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुज़फ़्फ़र अंसारी से। मुज़फ़्फ़र, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय शुजाबाद में सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकूम और उनके साथ साथ ATM तकसीम करने की जो अमल है उसका आज आगाज़ कर दिया गया है, जिसके हवाले से इब्तदाई तौर पर शुजाबाद के 30 मौज़ात के 500 अफराद को आज इमदादी रकम और उनको इमदादी जो ATM का दिया जा रहा है, जिसके अंदर उनको अमाउंट दी जाएगी। इसी हवाले से हमारे साथ एक मुतासरा जो मौजूद है, उनको आज इमदादी रकम मिल गई है, उनके हवाले से जानते हैं कि क्या कहते हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अख्तर हुसैन, रिहायशी मौज़ाजाई तहसील शुजाबाद, हुकूमत पंजाब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस आड़े वक्त में उन्होंने हमारी सर दस्त इमदाद की है। मुझे 50,000 मिले हैं, मैसेज 75,000 का आया है, बाकी ATM दे दिया है उन्होंने। ATM के ज़रिए हम निकल आएंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मोहतरमा मरियम नवाज का मैसेज आया था या 75,000 का? 75,000 जी। जी, आपको 75,000 का मैसेज आया, जबकि अमाउंट इनको 50,000 दे दी गया और इसके साथ साथ ATM भी दिया गया, जिसके अंदर मजीद इमदादी रकम आ सकते हैं। इस तरह का अमल ये सुबह शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसके अंदर सैलाब मुतासरीन को ये इमदादी जो ATM भी एक्टिव करके दिया जा रहा है और उसके साथ साथ नकद कैश भी दिया जा रहा है, ताकि जो शहरी हैं उनको इमदादी जो रकम मिल जा रही है वो इनसे अपनी घरों की रेनोवेशन और इसके साथ साथ अपनी जो इब्तदाई उनको खुराक या कोई दीगर चीज़ें चाहिए वो ले सकें। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं शुजाबाद के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इमदादी कैंप कायम किया गया। मुख्तलिफ मवाज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले 500 सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम जारी है। सैलाब रेलों ने 30 मवाज़ात को मुतासिर किया। कुंदिया के नवाही इलाका नौशहरा मोड़ में 62 अफराद का भट्टा मजदूर के अहले खाना पर तशद्दुद का वाक़या है। मोहम्मद सलीम की अहलिया को अगवा कर लिया, बच्चियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजमान घर से 1 तोला सोना और 50,000 नकदी भी ले गए। संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। पुलिस ने भट्टा मजदूर की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट करें, कुंदिया के नवाही इलाका नौशहरा मोड़ में 62 अफराद का भट्टा मजदूर के अहले खाना पर तशद्दुद। मोहम्मद सलीम की अहलिया को अगवा कर लिया, बच्चियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान घर से 1 तोला सोना और 50,000 नकदी लेकर फरार हो गए। तफसीलात से आगाह करेंगे अताउल्लाह शाहीन।
जी बिल्कुल, देखिए नवाई इलाका नौशेरा मोड़ में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इलाका के आबिद बिलावली, रजू और रजब अली वगैरह मुसल्लह अफराद मोहम्मद सलीम नामी बट्टा मजदूर के घर में घुस गए। घर में मौजूद मोहम्मद सलीम की एहलिया और बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और मोहम्मद सलीम की बीवी को भी अगवा करके ले गए। मोहम्मद सलीम ने थाना पुलिस में दफात देती मौके इख्तियार किया। गुज़श्ता रोज मैंने मुल्ज़मान के भाई रजब अली को कहा कि आप इस बिलावली किरदार बशकूके से मना करके हमारे घर के आस पास न घुमा करे, तो रजब अली ने बजाय भाई को मना करने मेरे साथ लड़ने लगा। मुल्ज़मान भाई बासर है, उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर पुलिस को बताया तो जान से मार देंगे। जी बहुत शुक्रिया ताउल्ला शाहीन आपका। मुजफ्फरगढ़ में मौसम तब्दील, लेकिन नालों की सफाई ना हो सकी। चुंगी नंबर 9 से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तक नाले की सफाई ना होने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा, शहरी बीमार होने लगे। शहरियों का डीसी मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में मौसम की तब्दीली के बावजूद नदी नालों की सफाई ना होने से मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद मुजफ्फरगढ़ की राब्ता नहरों और नदी नालों में पानी जो है वो बंद कर दिया गया था, जिसके बाद यहाँ सफाई की सूरत हाल अब तक जो है वो इंतहाई अबतर हो चुकी है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके कायम वाले से होता हुआ ये नाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और फिर इससे भी आके जाता है। चुंगी नंबर 9 से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तक नाले की हालत इंतहाई खराब है। मकामी अफराद इस बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं से जरा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं जी, नहर और नाले की हालत इंतहाई खराब है, गंदा पानी ठहरा, मच्छर है, क्या परेशानी है इससे? 9 नंबर चुंगी से लेके ये नहर तक ये बहुत मच्छर है, इसके अंदर गंदगी फैली हुई है, बहुत बीमारियां फैली हुई हैं, इसके अंदर बहुत मसले मसाइल हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा इसको। अच्छा, कई बार इसकी सफाई हुई है, बार बार सूरत हाल वैसी क्यों हो जाती है? ये बहुत गंदगी हो जाती है, सफाई नहीं होती इनकी, बस मच्छर इतने होते हैं, डेंगू मच्छर हैं, सो मसले मसाइल हैं, बच्चे होते हैं यहाँ पे, उनको मसले मसाइल हो जाते हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो अभी भी इस खड़े पानी में जो है वो ये सेवरेज का पानी और मच्छरों की बहुतात है। मकामी अफराद का ये कहना है कि इस हवाले से जिले इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट फकीरवाली में अचानक नादरा दफ्तर बंद हो गया। दर्जनों देहात के लोग नादरा खिदमात से महरूम हो गए। नादरा दफ्तर बंद होने से मकीन शनाख्ती कार्ड और बेफाम के हसूल के लिए दरबदर होने लगे। मामूली कागजी काम के लिए मीलों सफर करके दूसरे शहर जाने पर मजबूर हैं। तफसीलात से आगे करेंगे सुहेल इमरान चौधरी। जी बिल्कुल, फकीरवाली के शहरियों की सहूलत, सैकड़ों की तादाद में जो है देहाती थे वो भी इससे फायदा हासिल कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है इस नादरा दफ्तर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिससे फकीरवाली के शहरी जो है मजीद जो है वो मजीद परेशान है। तो मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन है। अच्छा सर, नादरा दफ्तर बनाया गया था, अब बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? सर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ਇਹ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਸਬ ਆਫਿਸ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਫਾਰਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ, कि नादरा दा दफ्तर फकीर वाली खोला जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि 22 से 25 किलोमीटर सफर तय करके हारूनाबाद जाना पड़ता है, बेफार्म बनाना हो या शनाख्ती कार्ड। इसके अलावा नादरा का कोई भी काम हो तो फकीर वाली के बजाय हारूनाबाद सफर करके जाना पड़ता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फकीर वाली के शहरियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया था नादरा दफ्तर का सब ऑफिस का कैम होना, तो जिससे फकीर वाली के शहरियों में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सालाना इनकम टैक्स से गोशवारे जमा करवाने का सिलसिला जारी। रीजनल टैक्स ऑफिस में 3,60,162 से जायद टैक्स रिटर्न जमा। टैक्स रिटर्न जमा करवाने का ट्रेंड स्लो। मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो है वो सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का जो सिलसिला है वो जारी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो है वो दूसरी बार तारीख में जो है वो इजाफा किया गया था, और दूसरी बार इजाफे की जो तारीख है वो भी जो है वो इख्तिताम के करीब। अगर हम बात करें तो रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में अब तक जो सालाना गोशवारे जमा हुए हैं उनकी तादाद जो है वो अब तक 3,60,162 हो गई है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो है वो यही बताया गया कि पिछले साल से 22% ज़्यादा जो सालाना इनकम टैक्स गोशवारे हैं वो अब तक जमा हुए हैं, और गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में 2,94,594
टैक्स रिटर्न जो है वो जमा हुई थी। तो उस तनाजुर में 22% से जायद जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो इस दफ़ा जो है वो जारी नहीं है। लेकिन अभी भी हम बात करें तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा स्लो देखने में आ रहा है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से यही कहना है कि इस बार जो है वो तारीख में इजाफा नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होगी। उनको लेट फाइलर जो है वो तस्वुर किया जाएगा और फिर उनको लेट फाइलर के नुकसानात के जो नुकसानात हैं वो भी उठाने पड़ेंगे। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से जो है वो ये वार्निंग भी जो है वो जारी की गई है और ये मुतालबा भी जो है वो किया गया जो टैक्स बॉडीज़ हैं उनसे भी, क्योंकि गुज़िश्ता बार भी यही इजाफा जो है वो जो टैक्स दहिंदगान है उनके कहने पर जो है वो किया गया था। लेकिन हमने ये देखा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से कहा गया था कि तारीख में इजाफा जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद यही जो है वो देखने में आया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से जो है वो इजाफा किया गया है। तो अब भी FBR की जानब से ये वार्निंग जो है वो जारी की जा रही है कि जो टैक्स दहिंदगान तान ने मेरा प्यारा ऐप लॉन्च कर दी है। मेरा प्यारा ऐप के जरिए गुमशुदा बच्चों को मिलवाने का सिलसिला भी जारी है। हुकूमती ऐप पर किस तरीके से बिछड़े बच्चों को ढूंढा जा सकता है, जानते हैं हसन मलिक से। जी, सेफ सिटी मुल्तान की जानिब से सिर्फ चलान का ही सिलसिला जारी नहीं है बल्कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी काम किए जा रहे हैं। सेफ सिटी मुल्तान ने मेरा प्यारा ऐप लॉन्च की है जिसके ज़रिए जो गुमशुदा बच्चे हैं उन्हें उनके वालिदैन से मिलवाने का सिलसिला भी जारी है। और ये ऐप किस तरीके से काम करती है, बाकायदा तौर पर एक पेज बनाया गया है, एक ऐप बनाई गई है जिसके ज़रिए जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको उनके वालिदैन से मिलवाया जाता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ SP सेफ सिटीज मुल्तान नसरुल्लाह वड़ाइच साहब मौजूद हैं। जितने भी मिसिंग चाइल्ड्स हैं वो बच्चे जो अपना नाम नहीं बता सकते या जो बोल नहीं सकते या किसी वजह से भी उनको उनके ज़हनी यानी कि सलाहियत नहीं है कि वो अपने आइडेंटिफिकेशन वो बता सकें। हमने एक माह में तकरीबन आज की डेट तक हम 56 बच्चे और जो हम उनके पेरेंट्स तक उनको ढूंढ के उनको मिला सके हैं और ये बहुत अहसन कदम है। और इस पे सेफ सिटी का जो मेरा प्यारा ऐप है इसके ज़रिए हम जितने भी इस वक्त बच्चे जो अपने वालिदैन से बिछड़े हुए हैं उनकी तस्वीर भी हम थ्रू ऐप लोगों को इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और पेरेंट्स की वो खुशी उस वक्त देखने वाली होती है जिस वक्त उनका बिछड़ा हुआ बच्चा बड़े अरसे बाद उनके पास पहुंचता है या उनसे मिलता है। सेफ सिटी मुल्तान के नाम से एक पेज है जिसको शहरी फॉलो कर सकते हैं। मियांवाली के बाजारों से हटाई गई रेहड़ी बानों को नई रेहड़ियां फराहम कर दी गई। पहले मरहले में 26 रेहड़ी बानों को रेहड़ियां दी गई थी। तमाम रेहड़ी बान अब मॉडल बाजार में रेहड़ियां लगाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मज्जाज से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की विजन के मुताबिक तजावुज़ात का खात्मा करके रेहड़ी बान जो हैं उनको मुतबादिल बाइज़्ज़त रोज़गार देने के लिए रेहड़ियाँ भी दी जा रही हैं। एक मॉडल रेहड़ी बाज़ार बनाया गया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। CO ज़िला कौंसल साजिद महमूद साहब ने इन तमाम रेहड़ी बानों को रेहड़ी दी। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस हवाले से हम बात करेंगे। सर बताइएगा इसका क्राइटेरिया क्या है, कितनी रेहड़ियाँ दी जा रही हैं और मॉडल बाज़ार जो है वो कहाँ पर तश्कील दिया गया है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का ये विजन है कि रोडों में से और चौकों में से जो रेहड़ियाँ हैं उनको ख़त्म करके इनको एक जगह बाइज़्ज़त तरीके से उनको रोज़गार दिया जाए। और उनके विजन के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली ने 54 रेहड़ियाँ इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में तैयार हैं। आज फर्स्ट फेज़ में हमने 26 रेहड़ियाँ जो हैं हकदार रेहड़ी वालों को तकसीम की हैं और उनसे पुरानी रेहड़ियाँ वापस ली हैं। उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो बेहंगम रेहड़ियाँ मुख्तलिफ चौकों पर खड़ी हो जाती हैं, बाज़ारों में खड़ी हो जाती हैं, उनका तदारक किया जाए और उनको एक जगह बारोज़गार बाइज़्ज़त तरीके से एक जगह उनको रोज़गार का मौका फराहम किया जाए। जी, अब मियांवाली में सड़कों पर जगह जगह आपको रेहड़ी बान जो हैं खड़े नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उनको मुतबादिल बाजार भी दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि खूबसूरत और 1,30,025। जी शुक्रिया अख्तर मजाज अपडेट करने के लिए। कमिश्नर आमिर करीम खान ने SP चौक का गिलानी फ्लाईओवर सड़क की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया है। सड़क पर पहला AI बेस्ड मोनूमेंट नस्ब किया गया है जो शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। तफसीलात से आगाह करेंगे माहिर इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान कैंट में बामनजी प्लाजा पर मौजूद हैं। यहाँ पे कमिश्नर मुल्तान जो है वो आए हुए हैं। बाकायदा तौर पर पहला जो AI का मोनूमेंट है वो उसका इफ्तिताह किया गया है। क्या समझते हैं रिहेबिलिटेशन के मंसूबे हैं, मोनूमेंट AI क्या बनाया गया है,
क्या फ़ायदे होंगे और रिहेबिलिटेशन के मंसूबों के हवाले से क्या कहना है? आज हमने एसपी चौक से बोमन जी प्लाजा तक जो हमारी रोड है उसकी कारपेटिंग को मुकम्मल किया है, रिस्टोर किया है। ये सड़क एक इम्पॉर्टेंट लिंक है हमारे अर्बन एरियाज़ का। जो लोग इवन मोटरवे को यूज़ करते हैं, शेरशाह इंटरचेंज से आते हैं तो मुल्तान में इसी रोड को यूज़ करके मुल्तान शहर में अपनी मंजिल पे जाते थे। टूट फूट का शिकार थी, लोगों की कंप्लेंट थी, तो चीफ मिनिस्टर ने उन चीज़ों को एड्रेस किया है और लोगों के लिए ये एक बेहतर फैसिलिटी डेवलप की है। इसी तरह की और भी चीज़ें हम कर रहे हैं। हमारे पास मुल्तान एवेन्यू इसी महीने के एंड में इंशाअल्लाह हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे और वो 3 बिलियन का मंसूबा है, 9 किलोमीटर रोड है। तो ये मुल्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेजर डेवलपमेंट होने जा रही है कि लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अदा किया है। तो बतौर शहरी कुछ जिम्मेदारियां मैंने भी अदा करनी है कि मैंने भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत करनी है। जब मैं टायर बस्टर को वन वे की खिलाफ वर्जी करके जाऊंगा तो मैं उसको तोड़ूंगा, मैं उसको खराब करने की कोशिश करूंगा। अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? लोगों का भी है, सरकार का भी है। तो ये 2 वे ट्रैफिक है, लोगों ने जिम्मेदारी अदा करनी है। ये रवाज, ये रविश अब खत्म करना होगी कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती रहे और लोग उसको खराब करता रहे। जी बिल्कुल, एक मैसेज भी। मुल्तान में पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम, तालीमी इदारों में मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट कायम कर दिया गया। तलबा और तालबात 15 से ज़ायद सहूलियात से फायदा उठा सकते हैं। वुमेन यूनिवर्सिटी में पिंक पुलिस खिदमत मरकज वैन का इफ्तिताह किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अहमद खान। जी बिल्कुल, मुल्तान में पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसा इकदाम जो है वो सामने आया है। मुल्तान के तमाम तलीमी इदारों में जो है वो पिंक वैन का क़याम जो है अमल में लाया गया, जो कि जो है वो पुलिस वैन, पुलिस स्टेशन और जो है वो लाइसेंसिंग के आगाज़ के हवाले से, जो कि ख़वातीन को खसूसी तौर पर जो है वो पहले ई खिदमत मरकज़ जाना पड़ता था या किसी भी ट्रैफिक दफ्तर जाना पड़ता था, अब उनके तलीमी इदारों में ही ये वैन जाएगी और उनका लाइसेंस और दीगर सहूलियात जो है उनको फराहम करेगी। CTO मुल्तान है काशिफ असलम साहब, उन्होंने जो है वो जो वुमेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इस वैन का इफ्तिताह भी किया। हमारे साथ बात करने के लिए भी CTO मुल्तान काशिफ असलम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक तो फैसिलिटीज़ जो हैं वो शहरियों को डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि हमारे माशरे की बहुत बड़ी तादाद जो है 50% प्लस जो है वो हमारी ख़वातीन पर मुश्तमिल है और उनको प्रायोरिटी पे सर्विसेज देने के लिए ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए जो कि उनको ज़्यादा जाना भी ना पड़े और उनको बगैर किसी मुश्किलात के उनकी डोर स्टेप्स पे सर्विसेज मिले। इसलिए जो उनका विजन है कि हमारी जो तलबा लड़कियां हैं या जो सारी हमारी वर्किंग वुमेन हैं, उनको जहां पर भी होंगे मौजूद, वहां पर जाके वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। क्या समझते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे सब? एक हमारे जो सूबा पंजाब की जो वज़ीर आला साहिबा हैं वो क्योंकि खातून है और वो बिलीव करती हैं विमेन एम्पावरमेंट में, और इसीलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, एक और इनिशिएटिव जहां बहुत सारे और इस तरह के इक़दामात उनके हैं, एक और इनिशिएटिव के उन्होंने मोबाइल पुलिस स्टेशन का इजरा किया है, जो कि हमारे लिए ख़वातीन के लिए, क्योंकि हम साउथ पंजाब के इलाका यानी कि जो है ये थोड़ा सा मार्जिनलाइज्ड हम इसको सोचते हैं कि है, ख़वातीन को इतना एम्पावर नहीं किया जाता, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन इक़दाम है। मसाइल हैं पुलिसिंग, जो पुलिस के हवाले से, FIR के हवाले से, उनको कोई और मसला है तो वो हल भी करेंगे और FIR का इंदराज भी करेंगे, और साथ साथ जो ख़वातीन के जो है वो लाइसेंसिंग के हवाले से। डेरा गाजी खान के प्राइमरी स्कूल्स में चीफ मिनिस्टर न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत दूध की फराहमी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। डेरा गाजी खान में इस वक्त मैं एक ऐसे स्कूल मौजूद हूँ जहाँ पर जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी, वो यहाँ पर आकर उन्होंने न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था, यानी कि बच्चे और बच्चियों को जो प्राइमरी स्कूल के हैं उनमें दूध वगैरह तकसीम किया जाना था। तो यहाँ पर आज स्पेशली ये चेक करने के लिए आए हैं हम प्राइमरी स्कूल में, क्या यहाँ पे बच्चों और बच्चियों को जो है वो दूध वगैरह मिल रहा है या नहीं मिल रही है। डेरा गाजी खान शहर के बीचों बीच जो बॉयज़ सिटी स्कूल नंबर 1 है गवर्नमेंट, वो स्कूल है ये, तो इनसे हम बात भी करते हैं। दोनों तलबा और तालिबात मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे बताएं, आप लोग के दूध मिल रहा है आपको रोजाना की बुनियाद पर? जी हाँ, हमें दूध रोजाना की बुनियाद पर मिलता है और ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, पीने के लिए टेस्ट वगैरह सब कुछ ठीक है? यस। मुझे आप बताएं, दूध के हवाले से क्या वाकई आपको रोजाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अगर नहीं मिल रहा तो भी बताएं। दूध हमें रोजाना मिल रहा है, दूध से हमें बहुत फायदा हो रहा है, ये मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, दूध का टेस्ट वगैरह सब ठीक होता है? कोई ऐसा तो नहीं कि स्मेल वगैरह आ रही, बदबू आ रही है, खराब है, जायका खराब है? सही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। ये पीछे बच्चों जिन जिन के पास दूध है वो जरा दिखाएं,
ये सब लोग, ये इस वक्त आज हम यही स्पेशली चेक करने आए थे, तो ये सबके पास दूध मौजूद है इस वक्त और सारे बच्चे खुश। क्या सब लोगों को दूध मिल रहा है? सब लोग बताएं। जी, इनकी ये आवाज बता रही है, इनका ये शोर बता रहा है कि सबको यहाँ पे दूध मिल रहा है। अगर दरमियान में कुछ ऐसा फील होता तो यकीनन हमें पता चल जाता कि दूध नहीं मिल रहा। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे है इस दौरान तो दूध मिलता है। थर्सडे वाले दिन बिस्किट वगैरह का प्रोग्राम होता है, फ्राइडे वैसे हाफ होता है, उस वक्त नहीं मिलता। सैटरडे संडे की छुट्टियाँ आ जाती है, तो इस हवाले से मजमूई तौर पर जो यहाँ पे स्कूलों में दूध फराहम करने की सूरत हाल है वो बेहतर नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक आपका। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सरगानी में मील प्रोग्राम का इफ्तिताह सीईओ एजुकेशन शाजिया तौसीफ ने बच्चों में दूध और बिस्किट तकसीम करके मील प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। जिला के 604 प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को दूध और बिस्किट मिलेंगे। मजीद तफसीलात बताएंगे असलम बलोच। फिर में भी सीएम पंजाब मरियम नवाज के खसूसी अहकामात पर स्कूलों में मील प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है, जहां पर बच्चों को दूध और इसके साथ बिस्किट फराहम किए जा रहे हैं। बच्चे आज बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आज डिप्टी कमिश्नर बकर चौधरी मोहम्मद अशरफ और सीईओ एजुकेशन शाजिया साहिबा ने यहाँ पे उनका बाकायदा आज इफ्तिताह किया है। मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया साहिबा, उनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। जी आज आपने इफ्तिताह किया है, बच्चों को दूध पेश किया जा रहा है, आज बच्चे बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स की तरह बखर में भी मील प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब तशरीफ़ लाए हैं, इसका बाकायदा हमने आगाज़ किया और यहाँ पे आके बच्चों की जो खुशी है वो दीदनी है, उनकी एक्साइटमेंट हम जो है वो आपको दिखाएंगे भी सही। कुछ क्लास के बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड हैं, इवन कुछ बच्चे इसीलिए ही ज़्यादा खुशी से आते हैं कि ये एक मील प्रोग्राम जो बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। कम्युनिटी की खुशी भी एप्रिशिएबल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह ये पूरे जोशो खरोश से चलेगा और तमाम बच्चों की तरफ से मैम सीएम साहिबा का बहुत शुक्रिया। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा का खसूसी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। खातीन यूनिवर्सिटी में 2 रोजा रंगारंग ग्रैंड गाला का आगाज हो गया है। फेस्टिवल में तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सजाए गए हैं। सकाफत के फरोग के साथ साथ तालिबात को तफरीह का भरपूर मौका फराहम किया गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे सुहेरा तारिक। खातीन यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्रैंड गाला का इनेकाद किया गया है और आज उसका पहला रोज़ है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर सजावटी अशिया, खाने पीने की स्टॉल्स लगाए गए हैं। ख़वातीन और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रही हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आज होंगी। एक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर। आपका नाम क्या है और कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ? फ़ारदा फातिमा और ये मेरी सीनियर है बख्तावर। आप बताइए ना कैसा एक्सपीरियंस है और क्या क्या हो रहा है? फ़िलहाल तो अभी हमने अभी स्टॉल अपना लगवाया और सब सेटिंग की है। आ रहे हैं कस्टमर्स, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस थोड़ी स्लो चल रही है बट चल रही है। तो हम लोग इसी बात को पहले लेके वरीड थे कि हम लोग ने जो आइटम्स प्रिपेयर किए होगा या नहीं होगा, बट अच्छा जा रहा है। क्या है आपके पास यहाँ पर? चॉकलेट ब्राउनीज और हमारे पास माइक्रोनीज है। क्या पर्पस क्या है इस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी का जो मेन पर्पस है वो है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स आ सके, जो बिजनेस में या फिर आउट ऑफ थ्योरी कुछ लर्न कर सके। वो बेसिक इनका यही पर्पस होता है कि हम लाइफ में कुछ और जो है प्रैक्टिकल, जो सेलिंग कैसे होती है, इंगेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या होती है बेसिकली, वो समझ सके हम। तालिबात हैं वो इस फेस्टिवल को भरपूर अंदाज में इंजॉय करी हैं। इस 2 रोज़ा फेस्टिवल में कल जो है वो स्पोर्ट्स भी होंगी और आज के दिन जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ अशिया यहाँ पर फ़रोग के लिए रखी हैं और उनका कहना है कि ये तजर्बा जो है वो स्टूडेंट्स की। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।